Welcome students in your physics class, and today I have taken some selected problems here. This is the relation v is equal to at plus b upon t plus c, where v is velocity, t is time, and question asking you what are the dimensions of a, b and c. So you have to find the dimensions of these constants in this relation. Students, as you know, the principle of homogeneity, according to that principle, the dimensions of each and every term in relations having the same dimensional formula. So here the dimension of at will be same as the dimension of this velocity. The dimension of this term b upon t plus c, this is a single term actually, will be same as the dimension of velocity here. So firstly we will equate this term to this velocity here. So at is equal to v, okay, and because we'll have to find the dimensions of a, so we will take along this side only a and t along with this side, so it becomes v upon t. What is the dimension formula of v? V is lt minus 1, और टाइम का t हो गया, it becomes lt minus 2. क्लियर? इस तरह से हम c का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ. देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म में दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं b एंड c. तो यहाँ आपको अपॉन में जो गिवन है एक्चुअली, डिनोमिनेटर में आपको गिवन है t plus c. तो स्टूडेंट्स ये t is time here but c is not defined. तो स्टूडेंट्स as you know, the same physical quantity can be added or subtracted here, okay. So it means what, this c is also time, because time can be added in time, speed, length can be added in length, and mass can be added in mass, okay. So here this c is also time here. So what will be the dimensional formula of c? This c will be equivalent to time. So dimensional formula will be same as the dimensional formula of time. Clear? तो c का डायमेंशन फार्मूला हमने फाइंड किया. इस तरह से स्टूडेंट हम b का डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, ठीक है, एंड द डायमेंशन ऑफ दिस टर्म विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. सो दिस कंप्लीट टर्म विल इक्वेट दिस कंप्लीट टर्म टू द वेलोसिटी हियर. क्लियर? एंड नाउ वी विल टेक ओनली b हियर अलोंग दिस साइड, बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ b. क्लियर? ac का हमने फाइंड कर लिया है, कर चुके हैं, ठीक है. Now t plus c, we'll take this t plus c along this side, so it becomes v t plus c. Clear? So students, as you know the dimension formula of c, put the dimension formula of c here. t का dimension formula क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, ठीक है, और v का dimension formula हमें मालूम है lt minus 1 होगा. इस तरह से t plus t 2t हो जाएगा. Clear? 2 is a constant here, and इसको सिंप्लीफाई करिए. इसका l का पावर यहाँ 1 है और t का पावर यहाँ -1 है, इधर +1 है, तो क्या हो जाएगा, l t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट ओनली l हियर. तो इट द b इज इक्वल टू आ गया आपका 2l, बिकॉज 2 इज कांस्टेंट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए कांस्टेंट टर्म, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b विल बी इक्वल्स टू द l हियर. क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद आते हैं हम, एक टॉपिक है जो अक्सर कभी कभी आ जाता है 2 मार्क्स में या 1 मार्क में पूछ लिया जाता है इसको. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन? स्टूडेंट, ये दो डिफरेंट टर्म हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिजन. इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है और इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ. सपोज कि स्टूडेंट आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू गिवन है और उसकी ट्रू वैल्यू आती है आपकी 3.25. क्लियर? ये ट्रू वैल्यू है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो आपने मेजरमेंट किया है, ठीक है, तो उसके डिफरेंट मेजरमेंट, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको भी हम लेते हैं यहाँ. सपोज करिए a1 इज इक्वल टू आपने लिया है, उसकी वैल्यू आई है 3.35, और a2 ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है 3.24, और a3 ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है, सपोज करिए ये वैल्यू आपकी जो है वो 23 है, ठीक है, और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो आपको मिलता है 3.35
4. These are the three observations which we have taken here. A1 is 3.35, A2 is 3.24, A3 is 3.354. So here students, these are two terms, accuracy and precision. Accuracy is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. So in these observation, which value is more close to the true value? This 3.24 is close to this 3.23. So this is the accurate value. Clear? तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना ज़्यादा करीब है, उस पर डिपेंड करता है. तो यहाँ इन तीनों में हम देख रहे हैं 3.24 ज़्यादा करीब है इसके 3.23 के. सो दिस A2 ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट. क्लियर? तो दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू. लेकिन स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू इज नॉट प्रिसाइज. जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करता है कि अप टू व्हाट डेसिमल प्लेसेस द ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी टेकन. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया गया है. सेकंड ऑब्जर्वेशन अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक है. लेकिन थर्ड ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं आप अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया गया है. तो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज. ठीक है, तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक इसको ऑब्जर्व किया गया है. तो ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी इन कंपेरिजन टू अदर्स. तो स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको. प्रिसीजन डिपेंड करता है डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड करता है कि अप टू व्हाट डेसिमल प्लेसेस द वैल्यू इज मेजर्ड. ओके, और एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो ट्रू वैल्यू के कितना करीब है. ओके, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे दिस वैल्यू इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. ओके, बिकॉज देयर इज ए मच डिफरेंस इन बिटवीन 3.23 एंड 3.354. यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कम है. तो जब डिफरेंस कम होगा तो वैल्यू एक्यूरेट होगी. ठीक है, लेकिन प्रिसीजन जो है वो डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड करता है. क्लियर? तो ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा. ये इसमें बेसिक डिफरेंस है. इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पर. ये इक्वेशन है y इज टू आर साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस k पाई. क्लियर? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y इज टू आर साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन ओमेगा x अपॉन v हो जाएगा, और साइन को इसके साथ लेंगे तो माइनस साइन ओमेगा, ओमेगा बाहर था, ओमेगा k पाई हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ x एंड k. And in this equation we have the known values are physical quantities are v is velocity, omega is angular velocity. Omega angular velocity क्या होता है? angle upon time होता है. ठीक है, और angle dimensionless quantity है, so it becomes 1 upon t, और t का dimension formula होता है t inverse. तो इस तरह से हमें omega का dimension formula मालूम है, t inverse होगा angular velocity का. तो हम easily यहाँ पर हम dimensions निकाल सकते हैं x और k के. ठीक है, तो स्टूडेंट्स होमोजेनिटी प्रिंसिपल का हम यूज करेंगे. इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा. हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ एक्चुअली आपको मालूम है कि जो साइन के साथ ये वैल्यू है एक्चुअली ये थीटा के इक्विवेलेंट है, बिकॉज दिस इज साइन ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है, और साइन ऑफ थीटा आप कहते हैं. तो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? ओमेगा x अपॉन v है. तो दिस इज ए एंगल एक्चुअली. तो साइन के साथ जो है जो भी वैल्यू होती है वो एंगल होती है एक्चुअली. तो यहाँ पर ये क्या है? एंगल है. ओके, तो दिस कंप्लीट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल एक्चुअली. तो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m0 l0 t0. ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो ये क्वांटिटी एंगल के इक्विवेलेंट आप रखेंगे और ये डायमेंशनलेस है. ठीक है, तो अब इस तरह से हम इसका यूज करके हम x का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अब w अपॉन v को अपॉन इधर लेके जाएंगे, अनदर साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा v अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा v अपॉन w. क्लियर? और v का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1 है, ओमेगा का t इनवर्स हो गया. t इनवर्स हमने मालूम है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? t इनवर्स से t इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा. देन डायमेंशन फॉर्मूला विल बी l ऑफ दिस कांस्टेंट x हियर. क्लियर? इस तरह से स्टूडेंट हम इस वाले टर्म का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं. अभी आप देख रहे हैं दिस इज साइन ऑफ थीटा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 l0 t0 के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो k का हम निकाल सकते हैं. तो पाई इज ए कांस्टेंट हियर, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो दिस k विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा इज t इनवर्स, सो इट बिकम्स t. इस तरह से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी की. क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको किया था पहले इसमें प्रीवियस लेक्चर में एक्चुअली, लेकिन वो अच्छे से नहीं बता पाया था. तो इसको समझ लीजिएगा. परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तब आपके समझ फर्स्ट वाले में दिस इज द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू हियर बिकॉज इट इज अप टू 1 डेसिमल प्लेस, और दिस इन दिस ऑब्जर्वेशन
ओके, वैल्यू गिवन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो आंसर आपका, हालांकि एडिशन के बाद में जो आंसर आपका आ रहा है वो 17.435 आ रहा है, लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक होगा या लीस्ट प्रेसाइज वैल्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों ऑब्जर्वेशन में जो लीस्ट प्रेसाइज है वो 3.2 है, और 3.2 में जो डेसिमल के 1 प्लेस तक ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए आंसर भी आपको डेसिमल के 1 प्लेस तक आपको रखना है। तो जो लीस्ट प्रेसाइज में आपको ये देखना है, लीस्ट प्रेसाइज वैल्यू में अप टू व्हाट डेसिमल प्लेसेस यू हैव गिवन द वैल्यू एक्चुअली, तो आंसर विल बी ओके विल बी सेम एज द लीस्ट प्रेसाइज वैल्यू। क्लियर? इस तरह से हम सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि 27.482 माइनस 27.4 है, इनका आपने सब्ट्रैक्शन लिया, सब्ट्रैक्शन के बाद में वैल्यू मिलती है 0.082 मिलती है आपको। ठीक है, तो यहाँ 0.082 ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको मिला है आंसर इसका, लेकिन जो करेक्ट वैल्यू होगी एक्चुअली, करेक्ट वैल्यू होगी ऑन द बेसिस ऑफ द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू। तो विच वन इज द लीस्ट प्रिसाइज विच हैविंग द लेसर number of decimal places actually. So here this 27.4 having the 1 decimal place, having the value up to 1 decimal place, so this is the least precise, so your answer will be on the basis of this value. Clear? तो आंसर आपका आएगा ये 0.082 है, तो यहाँ आप राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ करने पर आप जब 8 को ड्रॉप करेंगे तो इट गिव्स 1 टू द प्रीवियस वैल्यू एक्चुअली। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ये 0.0 था, नाउ दिस इंक्रीजेस बाय 1, सो इट बिकम्स 0.1 डेसिमल 0.1। क्लियर? तो इस तरह से स्टूडेंट जब हम ड्रॉप करते हैं किसी को, अगर जो ड्रॉपिंग नंबर एक्चुअली अगर वो 5 है या मोर देन 5 है, तब उस केस में जो प्रीवियस वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 1। तो इस तरह से 8 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो वैल्यू आपको मिलेगी 0.1। ओके, बाकी अगर जो इसमें 2 एग्जाम्पल और हैं उसको आप परफॉर्म करिएगा। ओके, this is your next topic, propagation of errors. Student, as you know, when we perform the experiment, it involves a series of measurements, and each and every measurement associated with an error, and in order to calculate the final result, okay, we perform the many mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. on these measurements. Clear? And the final error not only depends on the errors in individual measurements, but also depends on the mathematical operations, addition, multiplication, जो mathematical operations है उन पे भी डिपेंड करती है। तो एरर सिर्फ जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस पे ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ऑपरेशंस पे भी डिपेंड करती है, जो आप ऑपरेशंस उसमें अप्लाई कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, इन ऑपरेशंस पे भी एरर डिपेंड करती है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो एरर इन सम। ओके, जब हम सम ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं, तब उस केस में उसमें भी एरर आता है। ठीक है, वो एरर किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे सपोज करिए क्वांटिटी हमने ली है q = a + b, then how you can find the error in this quantity when you take the sum actually. So here we have given individual errors of a and b. Let's suppose this is delta a and delta b, okay, and let delta q is the error in this physical quantity q. Now we'll take the sum, okay, with errors. So this delta q plus delta q, this delta q is the error in q, इस तरह से हम a को लिखेंगे विद एरर, b को भी हम विद एरर लिखेंगे। तो इस तरह से जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो q प्लस माइनस डेल्टा q, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b होगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन q? इट विल बी डेल्टा q = प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल है कि अगर आपको एडिशन लेना है, ऐड करना है किन्हीं भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज को, क्लियर, तो उसमें जो एरर्स हैं, इंडिविजुअल एरर्स एक्चुअली, व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल एरर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, देन दैट एरर विल बी द सम ऑफ द एरर्स ऑफ इंडिविजुअल्स quantities. Actually here this delta a and delta b are the individual errors in quantities a and b, and delta q is the total error, okay, which is in quantity q.
So this delta q will be equals to the sum of the individual errors delta a plus delta b. क्लियर? तो इस तरह से अगर हमें इंडिविजुअल एरर्स गिवन हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हम उनका सम लेकर के टोटल एरर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका एक एक फार्मूला हो गया, एक मेथड ये हो गया। इस तरह से परसेंटेज एरर जब हम निकालते हैं तो परसेंटेज एरर का फार्मूला ही बनता है डेल्टा परसेंटेज एरर इन क्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी। क्लियर? we'll take the sum of the quantities here in upon and multiply by 100 परसेंटेज में आ गया। इस तरह से हम एरर इन डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, दिस q is equal to a minus b, ओके। तो एरर इन q is delta q, एरर इन a is delta a, एरर इन b is delta b, but here we'll take the positive sign, प्लस साइन लेंगे यहाँ पर हम। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का भी अगर हम यूज कर रहे हैं तभी भी हम जो है एरर्स का सम लेते हैं, जो इंडिविजुअल एरर्स हैं उनका सम लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेथड हो गया। डिफरेंस के केस में डेल्टा क्यू इस तरह से आप लेते हैं, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज एरर आप निकाल सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। अपॉन में एज इट इज रहेगा ए माइनस बी, जो भी ऑपरेशन आपने यूज किया है, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही लेंगे, लेकिन जब एडिशन लेते हैं एरर्स का तो उसमें प्लस आएगा। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ओके। कीप रिमेंबर दीज थिंग्स हियर। नाउ द नेक्स्ट इज एरर इन प्रोडक्ट। तो यू हैव गिवन दिस q इज इक्वल टू a इनटू b, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन q विल बी व्हाट। देखिए फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो इसमें हमें q में निकालना है फ्रैक्शनल एरर, तो डेल्टा q अपॉन q होगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a में a का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a अपॉन a होगा, b में डेल्टा b अपॉन b होगा, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में है दोनों, लेकिन यहाँ साइन कैसा होगा, प्लस साइन होगा। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, एक मेथड है, इस तरह से आप जो है कैलकुलेट करते हैं, प्रॉब्लम्स आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग दीज ऑल मेथड्स। क्लियर? परसेंटेज एरर फिर से हम वही करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब इंडिविजुअली भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे डेल्टा ए अपॉन ए है, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए। इस तरह से इन क्वांटिटी बी व्हाट इज द परसेंटेज एरर, डेल्टा बी अपॉन बी इनटू 100। क्लियर? और ये परसेंटेज एरर किसमें हो गया, क्यू में हो गया। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट एरर्स इन डिवीजन। डिवीजन के केस में हम किस तरह से करेंगे, अगर आपको q इज इक्वल टू a अपॉन b इस फॉर्म में कोई क्वांटिटी दे रखी है, तब उस केस में आपको एरर निकालना होता है, फ्रैक्शन आइदर फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। देन हाउ यू कैन परफॉर्म दिस डेल्टा q अपॉन q इज इक्वल टू प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन a इट विल बी डेल्टा a अपॉन a। अपॉन में भी है तो उसको भी आप प्लस में ही लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनता है किसका, प्रोडक्ट के केस में और अपॉन के केस में, ठीक है, डिवीजन के केस में, ठीक है। तो प्रोडक्ट और डिवीजन का जो फॉर्मूला होगा बिल्कुल सेम होगा। प्रोडक्ट में भी आप जो क्वांटिटीज दे रखी होती हैं, इंडिविजुअल क्वांटिटी, उन सबको आप सम के साथ लेते जाते हैं, ठीक है, प्लस साइन के साथ लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी आप ईच एंड एवरी टर्म यू विल टेक विद ए पॉजिटिव साइन। तो हियर दिस a, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फ्रैक्शनल एरर इन a, इट विल बी डेल्टा a अपॉन a। देन अब b का आपको लिखना है तो फर्स्ट यू विल टेक द पॉजिटिव साइन हियर, देन यू विल राइट द फ्रैक्शनल एरर इन b। इस तरह से अगर कोई और टर्म होता, c होता, d होता, उसको भी प्लस साइन के साथ आप लेते जाते इस तरह से अप टू सो ऑन, ओके, एंड टर्म्स तक। इस तरह से मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा q अपॉन q इनटू 100 एंड दिस द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन q एक्चुअली, एंड इट विल बी इक्वल्स टू द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन a प्लस मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन b। इस तरह से आप 100 से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम परसेंटेज एरर भी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से ये आप जो है मेथड्स को यूज़ करेंगे, और कुछ मैंने प्रॉब्लम्स भी ली हैं, एक दो प्रॉब्लम शायद हैं, मैं उनको बताता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट, जल्दी बाइंड अप करते हैं इसको। एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। अच्छा, एक इसमें और रह गया है मेथड, उसको आप समझ लीजिएगा। अगर सपोज करिए फिजिकल क्वांटिटी पावर्स के टर्म्स में दे रखी है, जैसे q इज इक्वल टू a टू द पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा q अपॉन q हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा q क्या है यहाँ पर, ये आपका एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और q एक ट्रू वैल्यू है अपॉन द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डेल्टा q अपॉन q।
इजिकल टू क्या होगा, पावर्स को हम प्रोडक्ट में लेते हैं, ठीक है, जो भी पावर्स होगी उसको हम प्रोडक्ट में लेंगे, देन विल राइट द फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, डेल्टा ए अपॉन ए। इसी तरह से अगर सपोज करिए स्टूडेंट यहाँ पर ये बी स्क्वायर भी होता है, तब आप कैसे लिखते हैं, तो प्लस करते, ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसको 2 डेल्टा बी अपॉन बी ले लेते, ठीक है, सॉरी इसको मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब आप इस तरह से लेते, बी स्क्वायर भी है सेकंड टर्म इसका, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है, तो प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी, इस तरह से आप इसको लेते। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टेकन वन एग्जांपल हियर, दिस f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। किस तरह से हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से बात ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया है। ये क्वेश्चन दिया है आपको, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, जिसमें वैल्यूज गिवन है, मास की वैल्यू दे रखी है 3.5 किलोग्राम, देखिए मास विद एरर गिवन है आपको, और इस मास में कितना एरर दिया है 0.1 किलोग्राम, प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, इस तरह से v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, इसमें एरर है प्लस माइनस 1 मीटर पर सेकंड, r दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको गिवन है 12, रेडियस 12.5, दिस इज द रेडियस एक्चुअली 12.5 मीटर एंड प्लस माइनस 0.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपको फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू दे रखी है विद एरर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स की मेजरमेंट किया गया है, ठीक है, विच दिस फोर्स डिपेंड मास वेलोसिटी एंड रेडियस। इस फोर्स में आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, ठीक है, और उसके बाद आपको फाइनल इसका रिजल्ट लिखना है। हाउ विल यू रिकॉर्ड द रीडिंग, आप किस तरह से फाइनली रिजल्ट लिखते हैं वो भी आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्टली विल फाइंड द फ्रैक्शनल एरर। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है फ्रैक्शनल का, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू मास के लिए लिखेंगे हम डेल्टा एम अपॉन एम प्लस, ठीक है, आपको मालूम है सारी वैल्यूज प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है, सबको प्लस साइन के साथ लिखना होगा। एक कंफ्यूजन आप अपना दूर करिएगा कि सारी वैल्यूज को, चाहे वो प्रोडक्ट में है या डिवीजन उसमें है, ठीक है, डिवीजन में है, तब आप यू विल टेक ऑल द टर्म्स विद द पॉजिटिव साइन, क्लियर, एंड यू विल टेक द पावर्स इन प्रोडक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर मास को डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस आर को लिखेंगे आप डेल्टा आर अपॉन आर। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, डेल्टा एम इज व्हाट, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डेल्टा एम दिया हुआ है आपको 0.1, ठीक है, इस तरह से एम की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, तो ये एम है और ये डेल्टा एम है, ठीक है, क्लियर। ये m एक्चुअली ट्रू वैल्यू है, ठीक है, मेजरमेंट तो आपका फाइनल m है, जिसमें ट्रू वैल्यू और प्लस ट्रू वैल्यू ली है और आपने क्या लिया है इसमें एब्सोल्यूट एरर, तो ट्रू वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर m जो है वो ट्रू वैल्यू है, ये याद रखिएगा, तो m इज 3.5, इस तरह से 2 इंटू डेल्टा वी कितना है इसमें, डेल्टा वी आप आइए देखिए, डेल्टा वी 1 दिया हुआ है आपको, 1 अपॉन वी की वैल्यू 20 है, इस तरह से डेल्टा आर गिवन है आपको 0.5 और आर गिवन है आपको 12.5, इस तरह से हम कैलकुलेट करके 0.17 आता है आंसर इसका। तो दिस इज द फ्रैक्शनल एरर 0.17, क्लियर, और ये किसकी वैल्यू आती है, ये डेल्टा एफ अपॉन एफ की वैल्यू आती है, यहाँ से डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0.17 इंटू एफ भी लिख सकते हैं, इसका हम आगे यूज करेंगे, तो ये डेल्टा एफ की वैल्यू आपको यहाँ मिलती है, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम परसेंटेज एरर पर। तो स्टूडेंट परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको भी आप इंडिविजुअली आप ऐसे ही करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, ठीक है। और स्टूडेंट डेल्टा एम अपॉन एम आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको 0.03 मिलता है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू, डेल्टा वी अपॉन वी और डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यूज हमने डायरेक्टली यहाँ पुट की हैं, तो इसकी वैल्यू 0.03 है इंटू 100 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू 0.1 है, यहाँ आपने कैलकुलेट किया है, इंटू 100, इस तरह डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू क्या है 0.1 है, और डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू है 0.04, क्लियर। तो इस तरह से आपने इनको कैलकुलेट किया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 10, इट बिकम्स 4, तो फाइनली गेट 17%। ये आपका परसेंटेज एरर आ गया, इसमें किसमें निकाला आपने, फोर्स में निकाला, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट सिंस यू नो दैट f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है, ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें mvr की, तो फाइनली आपको 112 मिलता है न्यूटन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स 112 न्यूटन, क्लियर। एज यू नो डेल्टा f अपॉन f इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.17,
एक्चुअली हम इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, रीडिंग को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों आपके पार्ट यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन फाइनल रिकॉर्ड ये सेकंड क्वेश्चन इसमें किया गया है, हाउ विल यू रिकॉर्ड द रीडिंग एक्चुअली। तो फाइनल रिजल्ट हम किस तरह से लिखते हैं वो आप समझिएगा। तो F इजिकल टू फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल लेते हैं पहले, वैल्यूज को पुट करके 112 न्यूटन आता है, ठीक है। और ये आप यहाँ निकाल चुके हैं, डेल्टा F अपॉन F इजिकल टू 0.17, तो डेल्टा F इजिकल टू हो जाएगा 0.17 इंटू F, और F की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट किया है 112, पुट करेंगे इसमें तो आपको 19 न्यूटन मिलता है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट ये होगा आपका, जो फाइनल रिजल्ट F होगा एक्चुअली इट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ये जो वैल्यू आपने निकाली है ट्रू वैल्यू है, ठीक है, बट दिस वैल्यू आल्सो हैविंग द सम एरर, और तो एरर कितना है उसका, वो 19 न्यूटन, ठीक है। डेल्टा F जो कितना है वो, ये एब्सोल्यूट एरर है एक्चुअली डेल्टा F, ठीक है। इस डेल्टा F को आप इस ट्रू वैल्यू में ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट F मिलता है, क्लियर। जैसे यहाँ वैल्यूज आपको गिवन थी, मास इज इक्वल टू द 3.5 किलोग्राम प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, तो यहाँ ये ट्रू वैल्यू है और इसमें डेल्टा M को आपने ऐड किया है, यानी M में डेल्टा M को ऐड किया आपने, तब आपको फाइनल रिजल्ट M मिल रहा है एक्चुअली। तो इस M से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये जो M एक्चुअली वो ट्रू वैल्यू है प्लस ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरह से ये जो F है एक्चुअली ये ट्रू वैल्यू आपको मिलता है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हैं, डेल्टा F को ऐड करना होगा आपको इसमें, डेल्टा F एब्सोल्यूट एरर है, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 112 प्लस माइनस, और एरर को क्योंकि हम प्लस माइनस साइन के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट विल बी 112 प्लस माइनस 19 न्यूटन। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करके देखिएगा, इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो डू ऑल दोज प्रॉब्लम्स, ओके। देखिए ये क्वेश्चन ये है कि रो इज इक्वल टू m अपॉन v, ये मास अपॉन वेलोसिटी है, तो सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर गिवन है एक्चुअली दिस m इज द मास एंड v इज द वॉल्यूम, क्लियर। वैल्यूज भी आपको गिवन है, मास और वॉल्यूम की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। पुट करके आप फाइनली परसेंटेज एरर आपको निकालना होगा, ओके। थैंक यू। From tomorrow I will start your next chapter, clear, motion in a straight line. Thank you so much.